کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھیں، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے۔ اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں ہی کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے
مجھے سینے سے لگایا. بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو. میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے, پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ, ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ, ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے, اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے, پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تجھے بے ایمان نہیں رکھنا, کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی, انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے. وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے, دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی, انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی, اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں, یہ بھی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, یہ بھی جھوٹ نہیں. تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا, وہی تو اس کو روایت فرماتے. تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جس نے بھی پیار کیا, جتنا بھی پیار کیا, جس رنگ میں بھی پیار کیا. عارف رومی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی, تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ فرمایا نہیں, سارے کام آج کے ہو گئے. حضور اجازت ہے جاؤں؟ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں, بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے, بات ہی ختم کر. ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو. کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے, آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی. فرمایا تو جا, جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے, دیکھ کے واپس آئے, کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے, میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے, جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہیں. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, چیز کو تلاش کرتے ہیں, آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک, تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا, چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں, وہ طاری ہو جاتی ہیں. میں تلاش کرتا رہا. تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو, اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا. تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی, کو لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا, یہ تو پیش کرنی تھی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا, یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا, یہ دھلا ہوا نہیں, میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے, میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے, وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا,
ये कैफियत है ना। मैं दोस्तों को कह रहा था कि बहनों और बेटियों को ईद जरा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना। वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते हैं ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तू को नोखे नहीं देता, सारा जमाना ही देता है। ये हमारी बहन भी अपने शौहर से ऐसे ही कहती है, कहती सारी दुनिया देती है कि ये अपने बच्चों के लिए कौन नहीं करता। लेकिन बहन को आप 600 का जोड़ दिया है ना कभी पुराना भी, तो वो जब तक 5-7 पड़ोसनों को बुला के दिखा नहीं ना लेती, उसे सुकून कोई नहीं आता। और वो वाला वो पहनेगी और पहन के कहेगी भाई बड़ा अच्छा है, वक्त पे आता है, और सारे जमाने को बताएगी। और मेरे जैसे पीर साहब की मुट्ठी में 5000 का नोट पकड़ाएं कि हजरत साहब दुआ कर दें, तो दुआ याद की होती है, रट्टी होती, पक्की केसट साहब के लिए। अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माशाअल्लाह, वो पक्की केसट पीरों ने याद की हुई है। और मेरा एक दोस्त है, कभी कभी अजराए मोहब्बत कहा करता था कि मुझे बहुत सारे पीरों की दुआएं याद हो गई हैं, क्योंकि अल्लाह माशाअल्लाह कुछ करते भी सिर्फ दुआ ही है ना। एक मुझे कहने लगा हमारे हजरत साहब तकरीर नहीं करते, वो करते नहीं। मैं क्या करते इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई नहीं, वरना तकरीर ना करना मार्फत नहीं, खुतबा देना तो मेरे रसूलुल्लाह का तरीका है, ये तो नबी पाक का तरीका है। तो मैंने कहा आप पीर साहब से मुलाकात हुई तो उन्हें कुछ किताबें पेश करना, उन्हें कहना इन्हें पढ़ा करें और वाज किया करें, ये नबी करीम की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि। तो पीर साहब जो है ना, रवायती लोग, आप 5000 2000 दें ना तो रट्टी रटाई दुआ कर देंगे। तो बहन को वैसे ही कभी बंदा अचानक कह देना दुआ करना जरा मुश्किल है, तो मिसल्ला भिगो देती है रो रो, या अल्लाह मेरे भाई की खैर कर। 7 समुंदर पार भी बैठी होती है, तो इसका तो भाई ये रिश्ता है ना, ये एक रंग है। जो खास चीज होती है वो आप देते हैं, खास चीज, खास समझ लो। थोड़ी एहतियात करें, अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया है ना। इमाम शाफी से किसी ने कहा था कि मैं रही तो ख्वाहिश है कि कुछ दूं, पर कोई हकदार बंदा ही नहीं मिलता, को मिले तो दूं ना। तो इमाम साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? तो फरमाने लगे सोच रहा हूं कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका हकदार था, तू हकदार था। जब रब करीम ने अपने फजल से दे दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को तलाश करता फिरता है, टटोलता फिरता है। तो थोड़ा सा ना समझे चीज। हमने सखावत अमीरों के जिम्मे लगा दी। अगर मेरा नालायक बेटा नहीं पढ़ता और मेरी बहन का बेटा लायक है तो मैं खर्चा उस पर क्यों नहीं कर देता, उस पर क्यों तवज्जो नहीं करता? वो जो दारुल उलूम का गरीब बच्चा जिसके अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ा काबिल है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं उसके बाप के पास कि वो उसे लेके आगे बढ़े, तो हम उसका हाथ क्यों नहीं थामते? एक एक 2-2 बच्चे का खर्च क्यों नहीं उठाते? हम ये तवज्जो क्यों नहीं करते? ये जहन क्यों नहीं बनाते? एक खातून आई सैयदा फातिमा ज़हरा के पास, उसने कहा बीबी साहबा एक मसला पूछना है। सैयदा पाक फरमाने लगी पूछो। कहने लगी मेरे पास 40 ऊंट हैं, अल्लाह के राह में कितने दूं? तो मखदूमा मुस्कुरा पड़ी, फरमाने लगी अगर मेरे पास 40 ऊंट होते तो मैं हुक्म और लगाती, अब तेरे पास है तो हुक्म और है। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाया तू 40 में से एक दे दे, और अगर मेरे पास 40 होते तो मैं सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर, सारे खैरात कर दे। उनकी जिंदगी देखी। अब जरा समझिएगा बात। हजरत फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। एक रवायत तो ये है कि वहां बात हो गई, और बाद में ये लिखा है कि आप तशरीफ लेके गई। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फातिमा चलो, काम कर करके थक जाती हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते। हमारे अब जो थोड़े से खाते पीते घर में, उसमें 2 किस्म की औरतें काम करती हैं, बर्तन धोने वाली अलग है, कपड़े धोने वाली अलग है। और इसके बावजूद आप कभी खातून खाना से मुलाकात करें, वो बड़ी दुखी नजर आएंगी आप, और हो सकता है अगले 3रे मिनट में वो रो भी पड़े, अगले 3रे मिनट में वो रो भी पड़े। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि वो वाला दम कहीं से तलाश करो जिनसे बीवियों का रोना थोड़ा खत्म हो। बड़ा ही रोती हैं और परेशान हो जाता है आदमी कि कैसे इन्हें सुख दिया जाए। ये यहाँ खवातीन का इंतजाम तो नहीं साथ? चले अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप रवायत तो नहीं ज्यादा करते आगे? चले अल्लाह ताला कर भी देंगे तो कोई अर्ज नहीं, मैंने तो अभी चले ही जाना है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। चूंकि बात खातून जन्नत की हो रही है ना, इसलिए बार बार जिक्र आता है, और तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तरबियत के लिए। मेरे भाई थोड़ा गौर फरमाए कि मौला अली शेर खुदा ने कहा फातिमा चलो, एक कनीज ले आते हैं, लौंडी ले आते हैं,
घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाएगी। तो किसके दरवाजे पे आई? वो रसूल जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सैयदा उस दरवाजे पे आई, बहुत सारे लोग बैठे थे तो बगैर बात किए वापस लौट गए। कुर्बान जाएं, मेरे हबीब खुद तशरीफ लेके गए। फरमाया फातिमा आई थी, कुछ कहना चाहती थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली ने फरमाया था कि हुजूर के पास एक जंग में कुछ लौंडियां आई हैं, तो अगर एक बांदी मुझे भी मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। मेरे महबूब करीम ने फरमाया फातिमा यारो सुनो, प्यार इतना के का जिगर का टुकड़ा है, लेकिन रंग क्या है तरबियत का। हुजूर फरमाने लगे फातिमा साहब सुफा का भी बंदोबस्त नहीं हुआ, उनको ज्यादा जरूरत है। ये लौंडियां, ये बांदियां, ये गुलाम उनके काम आएंगे। हाँ बेटे तू आई है, तूने कहा है, सवाल किया है, तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तू 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। रब तुझे गुलाम आजाद करने से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फातिमा का चेहरा खुशी से खेल उठा और कहने लगी देखो कमाल हो गया, हुजूर ने मुझे कितना बड़ा तोहफा अता फरमा दिया है। देखो ये बात कह के ना तो हुजूर ने एक बात पर मोहर लगा दी। फरमाया फातिमा जाओ जाके वज़ाइफ पढ़ो, चक्की तुमने खुद ही पीसनी है, आटा तुमने खुद ही गूंदना है। अब तुम्हारी खवातीन सवाल करती हैं कि मौलाना बताइए ससुर की खिदमत जिम्मे है हमारे, सास की खिदमत हमारे जिम्मे है। मैंने कहा काश तुम्हें मौका मिले तो तुम जाके सैयदा फातिमा बिनते असद से पूछो कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने उनकी क्या नौकरी की, क्या अंदाज इख्तियार किया, किस रंग में उनकी खिदमत की अपनी सास की। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा तुमने काम खुद करने हैं। यारो याद रखना, प्यार इसका नाम नहीं कि आप किसी की आदतें बिगाड़ दें और इतनी बिगाड़ दें कि वो किसी के काबिल ना रहे, उसका किसी से ताल्लुक ना निभ सके, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी वक्त ना गुजार सके। बल्कि प्यार तो ये है कि आप तरबियत कर दें, आप समझा दें, आप बना दें। हुजूर एक जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए ना तो महबूब की आदत थी जब आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर आते थे और जब सफर की तरफ जाते थे तो आखिर में सैयदा फातिमा की तरफ जाते थे। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना था। हुजूर जिहाद से वापस तशरीफ लाए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के काशाना अक़दस पे हुजूर तशरीफ लाए। हज़रत अली कहते हैं मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने सैयदा फातिमा को दिए, तो हज़रत फातिमा ने ना सोने की एक जंजीर, एक चेन, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपने ना वो बना के गले में डाली और घर में कुछ पर्दे लटकाए। मामला ये नहीं है कि मजबूरियां कितनी हैं, मामला ये है कि हमने वसाइल से ज्यादा मसाइल खड़े कर लिए और बेटियों को उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि वो कंपैरिजन करती हैं। वो कहती हैं उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। ये नसीहतें जब हम सुनते हैं तो हम जाके सीधा बीवी को सुनाते हैं, हालांकि ये तो बेटी को बताने वाली बात है जो जल्दी असर करेगी, ये तो बहन को बताने वाली बात है, ये तो यहाँ ये तो बात हम अपनी बच्ची पे करेंगे तो वो जल्दी असर कबूल करेगी। हुजूर तशरीफ लाए और पहला कदम रखा ना सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में, तो नबी करीम ने उनके गले के अंदर वो सोना देखा। औरत के लिए तो जायज है ना जितना मर्जी पहन ले। हुजूर ने वो सोना देखा, पर्दे लटके हुए देखे, सलाम ली और हुजूर वापस आ गए। जनाब फातिमा रोने लगी। मौला अली तशरीफ लाए तो कहा क्यों रोती हो। कहने लगी मैं बात समझ गई हूँ, ये मेरी चेन, ये मेरा सोना मेरे महबूब को पसंद नहीं आया, ये पर्दे हुजूर को पसंद नहीं आए, ये उतारिए, ये पकड़िए और हुजूर की बारगाह में ले जाइए और अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह जहां आपका दिल करे आप खर्च फरमाए, ये दे दीजिए। जनाबे अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं लेकर के वाकई ही हुजूर की बारगाह में आया तो महबूब फरमाने लगे अली मेरी बेटी होके सोने से प्यार करने लगी है, दुनिया के माल की जानिब तवज्जो करने लगी है। गोया मेरे महबूब ने कयामत तक की बेटियों को यह बतला दिया, अगर तुम गरीब की बेटी हो तो रोना ना, वो कायनात के शहनशाह की बेटी है पर मैंने फिर भी उन्हें फकर का दर्स दिया है, गरीबी का दर्स दिया है। ये गुर्बत, ये फकर हुजूर का इख्तियारी है, ये हुजूर की पसंद है, ये नबी पाक की चाहत है। मेरे दोस्तों अपने घर में बड़ी सादगी से, बड़े वकार से और बड़े आराम से इंसान
जब कहीं जाता है ना, लोगों के साथ वक्त गुजारता है, तो ज़रूरी नहीं होता हर शख्स की हर बात से इत्तेफाक हो। और जब इंसान एक जगह रहता है तो राय का इख्तलाफ भी होता है। वो अलग बात है कि हम राय के इख्तलाफ को मुखालफत बना लेते हैं, मुकाबला बना लेते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, साहिब तबकात ने इसको लिखा है, कहते हैं कि किसी वजह से ना मेरा और जनाब फातिमा का इख्तलाफ राय हो गया। मैं वैसे अक्सर कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में गलती मियाँ साहब की होती है। घूरने लगे आप मुझे, वो इसलिए कह रहा हूँ कि औरत की अकल आधी होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना, तो फिर कंट्रोल किसने करना था? चले ना बोलें पर बात तो ठीक है ना, कंट्रोल किसने करना था? तो ये तो कहते हैं मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, फिर काम कैसे चलेगा? इसको कंट्रोल करना चाहिए था। इसको चाहिए था कि ये हौसला बड़ा करता, ये दिल बड़ा करता। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो मुतलक इनान हूँ, किसी की जरूरत है मेरी सल्तनत में बोले, ऐसा हो सकता नहीं। ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तो मकाम है ना भाई, यहाँ तो आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मौला अली कहते हैं किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया तो बात जरा बड़ी, तो मुझे जलाल आ गया। हजरत मौला अली फरमाते हैं, शेर खुदा, ये बड़े लोग हैं जो बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बंदा होता है बड़ी बात करता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे लगता है आज बात मेरी वजह से बढ़ गई है, आज बात बड़ा ही मुश्किल काम है ये मान लेना कि आज मुझसे गलती हो गई। एक कायनात का बड़ा ही मुश्किल काम है, आप यकीन करें। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग देखे हैं कि 2 मिनट के लिए ये कहने को तैयार नहीं कि हम भूल गए थे। बड़े बड़े सियाने बंदे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने एक मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे नहीं इसका जवाब आता। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे हारून रशीद चुप कर, अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, देखूंगा, तहकीक करूंगा, फिर बताऊंगा। ये क्या? और हजरत अली शेर खुदा का कौल है। आप फरमाया करते थे बड़ा आलिम वो होता है जिसको बात का पता ना हो तो बयान ना करे, कहे मैं पूछ के बताऊंगा। दलील क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाया करते थे कि कसरत किलो काल का नाम इल्म नहीं, रब करीम से ज्यादा डरने वाला बड़ा आलिम होता है। कितना डरते हैं अल्लाह से वो बड़ा आलिम। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बात मेरी वजह से बढ़ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला पहुंची तो महबूब तशरीफ लाए। नबी पाक ने बात सुनी, अल्लाह ने अपने महबूब को गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, हर गैब की कुंजियां अल्लाह ने अपने हबीब को दी। तो हुजूर ने बात सुनी तो समझ गए कि आज बात अली की तरफ से बढ़ गई है। मैं बात खत्म करने लगा हूं, मैं भी बात अली की तरफ से बढ़ गई। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं सारी बात हुजूर ने सुनी, फिर हुजूर ने दुआ दी, मोहब्बत की दुआ दी। ये जो हम दाएं बाएं वाले हैं ना, एक बात और कर दूं, हम अगर चाहें तो मियां बीवी सुखी रह सकते हैं। हुजूर ने लानत फरमाई है उस शख्स को पर जो बीवी को मर्द के खिलाफ या मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है। आप एक जुमला कह के साइड पे हो जाते हैं, उन बेचारों ने रहना होता है 24 घंटे साथ, आप उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। और अगर आप थोड़ी सी शफकत करें, कहीं नहीं तेरी बीवी तो बड़ी अच्छी है, तो उनके, और मैंने देखा है कि जिन घरों में मियाँ बीवी का प्यार होता है ना, उनमें बच्चे भी बड़े सुखी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ खींचातानी हो तो घर में सारी सहूलियात होती हैं, सुकून कोई नहीं होता। अब मेरे महबूब ने क्या फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर? यह घर बनाने का बहुत बड़ा नुस्खा है, ये बच्ची के माँ बाप को भी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के भी। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, हजरत अली कहते हैं कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि बात मेरी वजह से बढ़ी। हुजूर ने दुआ भी दे दी और फिर सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और हुजूर फरमाने लगे फातिमा, अली तुम्हारे शौहर हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात तस्लीम की जाए। अल्लाह करे आपको समझ आए। बेटी का बाप ये बात समझे और बेटे का बाप ये बात समझे। फरमाया जरूरी नहीं तुम्हारी हर बात मानी जाए, तुम्हारे शौहर हैं, अगर कभी को बात कहें भी तो सुना करो। वो भी सैयदा थी, ये नहीं अर्ज की कि अब्बा जी मेरी तो राय सुन लें, आप बात ये नहीं कोई बात का। हुजूर ठीक है, आज के बाद कभी मौका नहीं दूंगी। हजरत अली कहते मैं दूर खड़ा था पर बाप बेटी की ये बात सुनी तो मैं रो पड़ा। मैं दौड़ के करीब आया और करीम रसूल का हाथ पकड़ के मैंने सीने पे रखा।
मैंने कहा महबूबा तेरे ऊपर भी कुर्बान जाऊं और तेरे हुस्ने तरबियत पर भी कुर्बान जाऊं और तेरी शहजादी के भी सदके जाऊं। कहा या रसूल अल्लाह फातिमा से कुछ ना कहे, अली वादा करते आज के बाद शिकायत नहीं आएगी। ये रंग दिया हुजूर ने वो घर चलाने के लिए, ये रंग दिया है। ये करबला का वाकया हादसाती नहीं। मुझे बाहर से एक दोस्त ने फोन किया, बाहर से, कहने लगे जनाब आपसे एक बात करनी है। 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो इंसान की तबीयत ही इतना बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे भूखे प्यासे रहे। मैंने कहा ये बताओ कि अगर बचपन से प्रैक्टिस हो फिर बंदा रह सकता है कि नहीं। कहने लगे जी फिर तो रह सकता है। तो मैंने कहा सैयदा फातिमा की तरबियत थी। इमाम हसन कहते हैं रोजे रखे थे हमने भी, बात लंबी है लेकिन मैं इशारा दे रहा हूं। कहते हैं रोजे रखे थे मौला अली ने भी, सैयदा फातिमा ने भी, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। और कहते हैं चंद रोटियां जौ पीस के मेरी माँ ने खुद पकाई। ओ बड़ा ही मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल। अपने बच्चे के मुंह से हलक से निवाला छीन के किसी को देना, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा। फरमाते हैं रोटियां जब सामने आ गई, ऐन इफ्तार का जो वक्त होता है ना, कोई और चीज सूझती नहीं, बिल्कुल नहीं सूझती। लेकिन फरमाते हैं दरवाजे पे मिस्कीन ने दस्तक दी तो सैयदा फरमाने लगी वो हमसे ज्यादा हकदार है। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, ऐन इफ्तार के वक्त यतीम आ गया। कहते हैं हमने पानी और खजूर से इफ्तार किया तो वो फिर उसी को दे दिया। तीसरा दिन आया तो कैदी आ गया, फरमाते हैं उसी को दे दिया। 3 रोजे गुजर गए पर खजूर और पानी पे गुजारा रहा। और मैंने कहा ये करबला का मामला हादसाती नहीं था। सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत दाखिल हो जाती है वो घर जन्नत नजीर बन जाता है। बहुत बड़ा किरदार है खातून खाना का। आज इस मुबारक मौका पर, इस खूबसूरत इज्तिमा में, इस मरकज में बैठकर जरूर चंद गुजारिशात जो की हैं इन पर गौर जरूर करना। देखना अगर हमारे बच्चे बद अखलाक रह गए तो उनकी बद अखलाकी बहुत सारे लोगों को उनसे तोड़ देगी। उनके अपने उनकी आदत की वजह से उनसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे आसानियों के आदी हो गए तो मैंने देखा है बड़े बड़े मरकज़ों में बैठ के भी शहजादे कुछ ना कर सके। लेकिन जो काबिल लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था पर काबिलियत थी ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा उनसे कहने लगी बच्चों के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या सोचेंगे। आपने फरमाया बुलाओ मेरे बेटों को। बच्चों को बुलाया तो सामने बिठा के कहने लगे बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका, डर गया। क्या मतलब। फरमाने लगे कि मेरे सामने रास्ता था कि मैं दोज़ख की परवाह न करता तो माज़अल्लाह बड़ा कुछ बनाता। तो बेटे मैं बुज़दिल था, मैं डर गया, कुछ नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना। अब के बच्चे कहने लगे अब्बा जी पहले भी लोग अमीर गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, पर उनकी औलादों से सलाम कोई नहीं लेता। लेकिन हम जिस गली से गुजर जाते हैं ना, लोग दुकानें छोड़ के सलूट करने आ जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ अल्लाह आपकी वजह से फजल कर रहा है तो कयामत में भी आपकी वजह से अल्लाह फजल फरमाएगा। इनको किरदार दे के जाओ। किरदार, हमारी दौलत, हमारी औलादें अगर ये संवर गई तो बड़ा कुछ बच जाएगा, और अगर ये ना संवरी तो बड़ा कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाएगा। वो अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, और नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।